Friends, I'm going to tell you about a new initiative called Rescuing Every Distressed Indian Overseas, or RADIO. This is a new initiative that aims to help overseas Indians who are in distress. As you know, there are over 30 million or over 3 crores of Indians living abroad in various countries, almost 180 countries. They get into trouble in large numbers every day in some country or the other. Sometimes these are related to immigration issues, passport, visa, job. Sometimes there are issues, medical issues. People fall sick. Sometimes there is a theft. Sometimes there is an alleged crime for which they have to go through the local legal processes. So all in all, they require different kind of help. Now, Government of India in the Ministry of External Affairs does have a scheme to help these people, and government is doing extraordinarily in this space. However, I also feel that there is a lot of space available to the civil society in this particular matter, in this particular direction, and therefore an initiative like this one, RADIO, or Rescuing Every Distressed Indian Overseas, would be very useful. I would like to appeal to you to join this particular initiative and help our fellow Indians who face trouble overseas. भी कभार कुछ घटनाएं ऐसी भी घट जाती है कि जिसे हम कहीं घटनाएं, फिर जिसे हम बोलते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ, जब वो चीजें हो जाती है उस वक्त हम उस घटना के क्रम को थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू कर देते कि ये घटना हुई कैसे। अब घटना होने के बाद होता ऐसा है ना कि अक्सर जब घटनाएं होती है, घटना के होने के बाद हम लोग पहला जो सोर्स हम लोग ढूंढते हैं वो ये ढूंढते कि मुझे इस मेरे प्रॉब्लम में से बाहर कौन निकाले। कि ना हमें प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन ढूंढने से, खुद से ढूंढने से अच्छा होता है कि कोई जानकार व्यक्ति अगर इसके बारे में अगर हमें जानकारी दे, हमें इससे बचाए या फिर हमें इस मुश्किल से बाहर लेके आए, वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैं जिस चीज के बारे में आज आपसे बात करने जा रहा हूं, हालांकि मैंने अपना नाम अभी तक आप लोगों को नहीं बताया, वो इसके लिए नहीं बताया क्योंकि मैं आज के इस कार्यक्रम का बस एक सूत्रधार हूं, एक माध्यम हूं, और माध्यम का नाम उतना जरूरी नहीं है जितना कि आज के हमारे गेस्ट और जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है उनका इंट्रोडक्शन जरूरी है। फिर भी औपचारिकता के लिए मैं अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम प्रसाद भारदे है और मैं आज के इस शो का सूत्रधार हूं, एंकर हूं, होस्ट हूं, संवाददाता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है रेडियो के बारे में। जी हाँ, रेडियो, रेस्क्यूइंग एवरी डिस्ट्रेस इंडियन overseas. Basically, this is an initiative of movement of positivity aims to help overseas Indian those who are distressed. 3 crore Indians living in abroad. They get into a trouble, a large number, sometimes related to some immigration related issues or a passport or visa, or sometimes they lost their jobs. Some of them, they are facing severe medical issues, or some of they have faced some false legal actions. So government India helping them, but many people who are staying in overseas not aware of government procedures. Okay, so because of these reasons they just stuck there, and they want to come back to their countries, but then still they are unable to do so. Since last 1 year, radio helped many distressed Indian from UAE, Saudi and US. So radio made out that efforts to free 16 detained Indian workers in Jeddah, city of Kingdom of Saudi Arabia, and offered them food, medical help and logistical support to return them and to get them back to India. The important thing which I really would like to highlight here, it's about recently we helped rescue 2 ladies from Dubai who are working as a maid, and
stranded in Dubai due to false commitment and unauthorized agents. So we help several Indians or Indian laborers to return from Saudi Arabia, assisting them to get passport, emergency certificate from embassy. And during pandemic time, we have done a fantastic job to get people. I mean, like during COVID pandemic, we helped so many overseas Indians to get bed in hospitals, plasmas for their relatives back home. So this is an extensive and extended support what we have provided through radio. This is a relentless effort which we have done. अब होता ऐसा है ना कि जब हम लोग कुछ एफर्ट्स करते हैं उसके लिए हमें वैसा कैप्टन भी होना चाहिए। जी हाँ, जिनके मार्गदर्शन के आधार पर और जिनके मार्गदर्शन द्वारा हम लोग ये महत्वपूर्ण उपक्रम हम लोग आज के इस युग में हम करने जा रहे हैं, वो जिनके मार्गदर्शन में हम लोग ये सब कर रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुड़े, फॉर्मर एम्बेसडर एंड सेक्रेटरी MEA एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ज्ञानेश्वर सर ने बहुत ही अच्छी तरह से इस रेडियो संस्था को एक रूप दिया हुआ है और उनके मार्गदर्शन के तले हम लोग ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब तो बातें हुई, जो रेडियो की बातें हुई, जो हम लोगों को रेस्क्यू करवाने का काम करते हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला कि एक अच्छा कैप्टन होने के साथ साथ टीम में अच्छे प्लेयर भी होने चाहिए, जैसे कि आज के हमारे गेस्ट। यहाँ मैं जिनका जिक्र अभी करने जा रहा हूं, उनका नाम है अमित विनय वाइकर। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस शो में। धन्यवाद, आदाब आपको और सारे श्रोता जो आप सुन रहे हैं, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने आज नए वर्ष की बात की, मुझे एक बहुत प्यारा शेर याद आ रहा है कि शायर ये कहता है कि हुकुम जनवरी है, हुकुम यानी फर्स्ट, हुकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा कि क्या हाल है। क्या बात है जी। आप सर अभी तो रेस्क्यू की टीम में हम सब शामिल है, तो सबका हाल बेहाल नहीं, मुस्कुराता हुआ ही हाल रखेगा। So before we start today's interview, let me introduce Amit sir. So he born in Nagpur in India on 20th July 1975. Mr. Amit Vinay Vaikar holds a double graduate degree in science and in English literature. He's an MBA. Mr. Vaikar has been based in Shanghai in China for last 10 years, and he is presently serving as Senior Vice President Asia with Toiler Food and Beverages Ingredients Company Limited based in Shanghai. He has served as a president of Indian Association in Shanghai from 2012 to 2016, and it is an association of Indian nationals in the Eastern China region, which is mainly engaged in the promotion of art, culture and Indian values across China. बहुत सारा, मतलब आज अगर अमित जी के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो शायद उनके इंट्रोडक्शन के लिए मुझे एक अलग से सेशन लेना पड़ेगा। इतना बड़ा उनका योगदान इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको, और आप बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। यस सर, जिस विषय के बारे में आज मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम चीजों को आधा अधूरा समझ लेते जी, और जब चीजों को आधा अधूरा हम लोग समझ लेते हैं तो उस वक्त जब सामने वाला कोई कुछ चीज पूछता है तो उसे आधा अधूरा जवाब देने से अच्छा है उसको हम कहें, ना भाई मुझे कुछ पता नहीं है, आप किसी जानकार को पूछ लीजिए। तो सर आपने मतलब जो भी काम किया हुआ है, स्पेशली रेस्क्यूइंग डिस्ट्रेस इंडियन पीपल टू गेट बैक टू देयर होम कंट्री, उसके बारे में अगर आप कुछ हमें जानकारी दे तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल प्रसाद, धन्यवाद मुझे ये प्यारा सा माध्यम देने के लिए। आप लोगों से चर्चा करना, आप लोगों से बातचीत करना, वार्तालाप करना, ये मेरे लिए हमेशा ही एक खुशी की बात होती है। आपने सही कहा, मैं पिछले 12 साल से चाइना में स्थित था। चाइना प्रसाद क्या होता है, जब मैं चाइना का वर्णन करूं या उसका जिक्र करूं तो लाजिम है कि हमारे भारतीयों के मन में कई अलग अलग तरह की भावनाएं उमड़ती है।
और हम उन भावनाओं की तरफ इस कार्यक्रम का रुख नहीं मोड़ेंगे। आप सबको जान के खुशी होगी कि भारतवासी 90,000 भारतीय आज चाइना में स्थित है। अब ये देखिए प्रसाद, ये नंबर कोई बड़ा नहीं है ना? अगर मैं अमेरिका की एक एक बड़े शहर की बात करूं तो शायद उसमें कई लाख भारतीय निवास करते हैं, इसलिए 90,000 कोई ज्यादा लगता नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता था, हम संख्या में कम है पर हम में दम है। वाह। भारतीय जो चाइना में स्थित है वो केवल बड़े बड़े शहरों में नहीं, शंघाई, ग्वांगझो, बीजिंग जैसे नहीं, पर ऐसे भी शहर जो आमतौर से आप लोगों के कानों में सुनने को नहीं मिलते हैं, ईवू, शाओशिंग, कचाओ, ऐसे शहरों में भी वो निवास करते हैं। आपने सही कहा कि आज हम बात कर रहे हैं रेडियो, रेस्क्यूइंग एवरी डिस्ट्रेस इंडियन ओवरसीज। और प्रसाद, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे कर्णधार डॉक्टर मुरे है। और एक और बात प्रसाद, कि दिस इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव अंडर द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी। ये मुरे सर की ही सोच है, कि उन्हीं का सोच का नतीजा है कि he has actually started a movement of positivity and radio is one of the facets of this wonderful movement of positivity. ये इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। प्रसाद, ये भी मुझे आप लोगों को बताना बहुत लाजिम है कि पिछले 10 सालों में, या पिछले जब से सरकार बदली है, हमारी जो भारतीय दूतावास, हम जिसे एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स कहते हैं, उनका रुख भारतीयों की तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा सेवा भाव, सर्विस ओरिएंटेड ये हुआ है। और इसके लिए हम भारत सरकार को जितना उनका अभिनंदन करें, उनका आभार प्रकट करें, ये कम है। मेरे हिसाब से हमारे आज के अब फॉरेन मिनिस्टर है, और उसके पहले हम सब की चहेती श्रीमती सुषमा स्वराज जी, इन्होंने जो काम किया है भारतीयों के लिए, ये इसकी कोई तुलना ही नहीं दी जा सकती है। पर क्या होता है प्रसाद, कि जब जैसे चाइना का मैं अगर जिक्र करूं, तो एम्बेसी को या कॉन्सुलेट्स को हर उस भारतीय तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, और ये लाजिम भी नहीं है। और यहाँ पे आवश्यकता है ऐसे संस्थाओं की, ऐसे लोगों की, जो इसका बीड़ा अपने सर उठाए। और कभी कभी तो ये बड़ा सरल होता है प्रसाद, कि आपको अगर कोई केस है और वो जेन्युइन है, तो उसे एम्बेसी तक पहुंचाई जाए, उसे कॉन्सुलेट तक पहुंचाया जाए। और जहां अगर ये नहीं संभव है, तो उस व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसे जिस तरह का सहाय्य, जिस तरह का आधार हम दे सके, उस आधार को देने का हम प्रयत्न करें। सर, आपने जैसे भी एक पहले आपने जिक्र किया कि जो भी बाधित है, जो भी पीड़ित है, पीड़ित और बाधित की जो ये संकल्पना आप अभी बता रहे, हम लोग ये रेडियो के माध्यम से मतलब संपर्क कैसे करें? फिर जब आपके पास कोई केस आता है तो वो कैसे आता है, किस माध्यम से आता है, उसी बारे में। कि मुझे इस चर्चा में really don't want to jump directly to the conclusion. I really would like to figure it out, the root cause of this particular problem. ये सब कैसे होता है, किन वजह से होता है, और वो लोग अप्रोच कैसे करते हैं? राइट, ये बहुत उपयुक्त पुख्ता सवाल है आपका प्रसाद। इसलिए पुख्ता है क्योंकि आमतौर से देयर इज अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सुनामी है हमारे पास, इतने सारे मीडियम्स, इतने सारे माध्यम है, जिसमें लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है सही चीज की पहचान करना, उस तक पहुंचना। इसलिए हमारे टीम ने और मुरे साहब के मार्गदर्शन में एक ओवरसीज एडवाइजरी कमेटी का चयन किया गया है रेडियो में। उसमें मेरे साथ मैं हूं, और मेरे बड़े भाई, या उन्हें जिन्हें मैं चाचा जी कहता हूं, डॉक्टर प्रकाश हेड़ा। जैसे आप देख सकते हैं, मुझे 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया था, और मेरे साथ मेरे ही नागपुर के डॉक्टर प्रकाश हेड़ा, जो केन्या में है, उन्हें भी यह सम्मान प्राप्त हुआ था। और हम दोनों को इसमें रखा गया है, और हमारा काम ये है कि ऐसे जो की सेंटर्स है या देश है, उनमें जो टॉप लोग हैं, जो इस सेवा में, इस कार्य में कार्यरत पहले से है, उन लोगों को रेडियो में कनेक्ट किया जाए। प्रसाद, होता क्या है कि चाइना जैसा है, तो चाइना में जो
जो कम्युनिटी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा होती नहीं है। लीडरशिप इज नॉर्मली विद 2-3 और मैक्सिमम 4-5 पीपल। राइट, एक बार आप उन तक पहुंच जाए और उनको आप रेडियो के साथ जोड़ दे तो फिर दैट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आजकल ये शब्द काफी फेमस हो गया है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकम्स वेरी इजी। क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो वो अपने दोस्तों को बताएगा, उसमें से कोई ना कोई कहेगा कि भाई चाइना में कौन है, और चाइना में जैसे ही बात आती है तो ये 3-4 लोगों के नंबर्स, उनके कॉन्टैक्ट ईमेल्स अगर ये प्रोवाइड रेडियो के माध्यम से देंगे, और हम वी विल इंश्योर दैट रेडियो इज अवेलेबल ऑन ऑल मीडिया चैनल्स, फेसबुक से लेके, ट्विटर से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, तो ये समस्या मुझे नहीं लगता है कभी आएगी कि किसी पीड़ित व्यक्ति को हम तक पहुंचने में मुझे नहीं लगता है कोई समस्या होगी। अच्छा सर, आपने प्रवासी भारतीय का उल्लेख किया, पुरस्कार का उल्लेख किया। मैंने जानबूझ के शुरुआत में मैंने उसका उल्लेख नहीं किया था क्योंकि आई एम सॉरी टू स्टील योर थंडर। नो प्रॉब्लम सर, डोंट से सॉरी। मैं जानबूझ के वो नहीं किया था बिकॉज कभी कभार ऐसा रहता है ना कि मैच शुरू होता है तो फुल टॉस जब आता है तब 6 मारना होता है ना, वो दैट वाज माय नहीं, मैं प्रकाश, मेरे लिए डॉक्टर प्रकाश, ये मैंने जैसे कहा मेरे चाचा जी, मैं उन्हें उस दर्जे से देखता हूँ और उनको मैं संबोधित करते हुए ये बताना मेरे लिए लाजिम था कि वो प्रवासी भारतीय सम्मान। नहीं जी, वो सम्मान के बारे में विशेष रूप से आपका अभिनंदन, और प्रकाश सर का भी विशेष रूप से अभिनंदन हम इस माध्यम से जरूर करेंगे, क्योंकि प्रवासी भारतीय सम्मान प्राप्त करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, आपने अपने ओवरऑल करियर में आपने देखा कि आप रामकृष्ण मिशन जैसे सामाजिक रूप से प्रभावशाली, जो अभी तक बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, उनके साथ भी आपने बहुत अपना काम किया। उसका, जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि उसका एक प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर हमेशा रहता है कि किसी प्रभावशाली संगठन के साथ अगर हम काम करते हैं, ये जो रेडियो, जो हमारी संस्था की संकल्पना है, जो मुड़े सर ने हमारे सामने रखी हुई है, जिस माध्यम से हम लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा इससे जुड़ा हुआ ये सवाल है, लोगों को, जो लोग बाहर जाते हैं हर ही देशों में काम की वजह से, या फिर जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स शुरुआत में देखे, लोगों को फंसाया जाता है या फिर कुछ उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और लोग फिर उसमें फंस जाते हैं, और इस प्रकार से लोग शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे वो दुविधा में या फिर किसी मुश्किल में फंस जाते हैं। ऐसी कौन सी घटनाओं का अगर आपको जिक्र करना, अगर आज के इसमें इस चर्चा में अगर आप करेंगे तो हमारे माध्यम से लोगों को भी ये पता होगा, जो आगे जो लोग, अभी कैसा है ना कि हम लोग, एज व्हाट यू राइटली सेड, जब तक लास्ट वाले आदमी तक हम लोग नहीं पहुंचे तब तक ये कार्य समाप्त नहीं होगा जी। तो अभी भी लोग संपर्क में रहेंगे, लोग अभी भी संपर्क करना शुरू कर रहे होंगे, किसी से मिलने जुलने का। अनऑथोराइज एजेंट्स की बात मैं से कर रहा हूँ, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यस, हिसाब से अगर आप कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने अगर आप रखें जी, बहुत बेहतर होगा। प्रसाद, ये बताना मेरे लिए उपयुक्त है कि अभी फिलहाल मैं आप सबसे रूबरू हूँ बैंकॉक से, थाईलैंड में। 2021 के मध्य में 12 साल, हमें मराठी में जिसे एक तप कहते हैं, वो 12 साल चाइना में बिताने के बाद मैं जिस कंपनी का आपने जिक्र किया था जिसमें मैं काम करता हूँ, उन्होंने मुझे चाइना से थाईलैंड जाने का न्योता दिया। एक अच्छा जॉब प्रोफाइल मेरे लिए वहां था, और मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी क्योंकि चाइना में एक बहुत अच्छी संगठन, इंडियन एसोसिएशन का आगामी नहीं हुआ था, उनका अच्छा प्रस्तावित नेटवर्क बन गया था। और थाईलैंड में मुझे जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैंने उस कम्युनिटी के बारे में, भारतीय कम्युनिटी के बारे में बहुत ज्यादा सुना था, पढ़ा था, और मैं उत्सुक था ये जानने के लिए कि वहाँ की समस्याएं क्या है। अब मैं अगर चाइना के बारे में आपको बताऊं प्रसाद, तो चाइना में ऐसे एजेंट्स का काम करना बहुत कम है, या वर्चुअली वो नहीं है, बिकॉज चाइना में आना भी बहुत मुश्किल है लोगों का, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंडियंस ही वहाँ आते हैं। तो वहाँ पे टिपिकली लेबर क्लास जो है हमारा, वो वहाँ आता नहीं है, या उतने नंबर्स में नहीं आता है। तो जो इंडियन रेस्टोरेंट्स है उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो आते हैं, पर जिस तरह से मिडिल ईस्ट में
एक इन्फ्लक्स है हमारे यहाँ के लोगों का, उतना इन्फ्लक्स यहाँ नहीं है। तो यहाँ की समस्याएं अलग है प्रसाद। समस्याएं कैसी हो सकती है? समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ट्रेडर्स है, ये जो बिजनेसमैन है, भारतीय बिजनेसमैन, जी उन्होंने किसी चाइनीज कंपनी के साथ टाई अप किया है, उन्हें कुछ पैसे भेजे हैं या उन्हें कुछ एलसी ओपन किए या कुछ पेमेंट की है, और सडनली वो कंपनी गायब हो गई। वो उन्हें रिप्लाई नहीं कर रही है, उनका पैसा फंसा हुआ है। ये एक समस्या, बड़ी समस्या हमें आई थी। इसलिए हमने इस समस्या का निवारण करने के लिए हमने एक लॉयर्स की एक टीम ही बनाई थी। फिर से देखिए आप, क्या होता है कि जब एक एक व्यक्ति समस्या में होता है तो उसे तुरंत निवारण की जरूरत होती है। आप उसे उस वक्त भाषण नहीं दे सकते। वो उस वक्त उसे तो एक ही वांट्स अ सॉल्यूशन। सो व्हाट हमने एक काम किया था कि एम्बेसी से बात करके एक लीगल, जो वहाँ के टॉप नॉच चाइनीज लीगल फर्म्स थी, उनको हमने कांटेक्ट किया था और उनका एक सूची बना के उनके कांटेक्ट नंबर्स की लोगों से हमने बात की थी। ये एक समस्या होती है। जी दूसरी समस्या ये होती है कि भाई चाइनीज कंपनी ने माल भारत में भेज दिया और जब वो कंटेनर खुला तब ये दिख गया कि भाई हमने मांगी थी 100 और आई 10। ये भी समस्याएं होती है। तो इन सारे के लिए ये एक दिस वाज वन थिंग। प्रसाद, कोविड से पहले एक बहुत बड़ा वर्ग होता था टूरिस्ट का, भारतीय टूरिस्ट का, और इन्हें लाया जाता था हमारे भारत में। जो टूर ऑपरेटर्स है, कई टूर ऑपरेटर्स है, आप सब उनका नाम जानते हैं, वो सारे लोग चाइना के 8, 10, 12 दिन के टूर पैकेजेस बना के उन लोगों को वहां लाया करते थे। एक घटना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो क्योंकि मानवता के अलग अलग पहलू जो जिसका एक हमें जिस तरह का उन्हें फेस करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, उसका ये उदाहरण है। और मैं किसी को बुरा या भला नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं किसी का नाम इसमें नहीं लूंगा। एक स्त्री जो हमारे पुणे शहर से एक बड़े टूरिस्ट कंपनी के साथ वहां घूमने के लिए आई थी, शियान में आते ही उन्हें एक बहुत बड़ा, शी हैड अ मैसिव हार्ट अटैक, और अनफॉर्चुनेटली she collapsed and she passed away. वो जो टूर ऑपरेटर थी, ऑब्वियसली वो बहुत डर गई और कहीं से उन्हें मेरा नंबर मिला, उन्होंने मुझे फोन किया। तो मैंने कहा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, शियान में एक अच्छा भारतीय कम्युनिटी का नेटवर्क है। हमने तुरंत हमारे जो भारतीय जो उस शहर में थे चाइना के, वो तुरंत विद इन अ फ्यू आवर्स वो वहां पहुंचे। और फिर ये हुआ कि हमने जो उनके बेटे, उनके परिवार से पूना में थे, उनसे संपर्क किया। इनिशियली उस परिवार ने ये इच्छा जताई कि वो लोग चाहेंगे कि उनका पार्थिव देह भारत वापस लाया जाए। और हमने कहा हम हर संभव प्रयास करेंगे। चाइना से ये बल्कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये प्रोसेस कहीं से भी मुश्किल होती है, किसी भी देश से ऐसा करना मुश्किल होता है। तो हमने कहा हम जरूर उसमें प्रयास करेंगे, पर हमें थोड़ा वक्त दीजिए। और विद इन लेट्स से 1 दिन में हमने वो सारा प्रोसेस इनिशिएट किया, और एक एक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो उस प्रोसेस में लगती है, वो हमने उस परिवार को बताई। परिवार ने तुरंत ये कहा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है, ये खर्चा बहुत ज्यादा है हमें करने के लिए। हमने एम्बेसी से बात की, और देखिए कितनी बड़ी बात है कि एम्बेसी ने कहा कि अमित जी, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अगर उस परिवार को अभी कुछ कठिनाइयां है तो अभी हम ये सारा जिम्मा अपने सर पे ले लेंगे और हम भेज देंगे। हमें सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए उस परिवार से कि जब भी पॉसिबल हो ये इसका रिएम्बर्समेंट या इसका पेमेंट हम वापस कर दें। एम्बेसी की बात सुन के हमें इतना खुशी आई, इतना सुकून मिला कि हमने भी उस परिवार से कहा कि भाई एम्बेसी तो करेगी ही, पर आज भारतीय समाज जो चाइना में है वो सक्षम है, प्रबल है, और वो अपने तरफ से भी ये सारे खर्चा उठाने के लिए तैयार है। बस आप हमें बताइए। प्रसाद जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें बताया गया कि नहीं, ये तो जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते हैं। और अब आप देख लीजिए आप वहां पे क्या करना चाहेंगे। प्रसाद जी, आंखों में आंसू था, नमी थी, मन थोड़ा सुन्न हो गया था, क्योंकि मैं अपने माता पिता से इतना ज्यादा लगाव रखता हूँ। मैं मेरे वालिद साहब की जो जिनका इंतकाल 9 साल पहले हुआ, उनकी याद में हर साल सालाना नागपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करता हूँ। तो ये सुन के ही मैं थोड़ा अचंभित था। पर फिर आपने जैसे जिक्र किया कि मैं बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित हूँ, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे
रामकृष्ण मिशन जैसे बड़े संस्था की, जिसे मैं एक बड़ा वृक्ष समझता हूँ, उसकी लाइफ मेंबरशिप मुझे मिली, उन्हें ऑफर की गई और मैंने विवेकानंद जी का स्मरण किया और उत्तर ये मिला कि अमित इससे बड़ा आपके लिए आशीर्वाद क्या है कि किसी को किसी के फाइनल जर्नी जिसे कहते हैं, अगर लास्ट राइड्स आप करें, तो इससे खुशी की बात, इससे पुण्य की बात, इससे बड़ा आशीर्वाद आपको नहीं मिल सकता है। माता जी का वहीं हमने अंतिम संस्कार किया और मेरे लिए ये अविस्मरणीय बात है। पर ऐसे कई प्रसंग, ऐसे कई घटनाएं, ऐसे कई बातें होती है और मैं अपनी तरफ से और सारे जो हमारे रेडियो के मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से कहता हूँ कि मुझसे भी बहुत बड़ा काम दुबई में, सऊदी में, मिडिल ईस्ट में हमारे रेडियो के कर्णधारों ने किया है और इसके लिए मुझे उनका बहुत फख्र है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ। सर, ये चर्चा में आपने जो जिस मुद्दे का जिक्र किया वो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही दुखद घटना थी और जिसे हम कहते हैं ना कि मानवता जो प्रतीक रहता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि सी एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टुडेज वर्चुअल वर्ल्ड, बट समटाइम्स समवेयर somehow you need that human intervention. And I mean, I think being an pioneer, or like, you know, you set an example for each one of us. मुश्किल वक्त में किस प्रकार से हमें डिसीजन लेने चाहिए और डिसीजन लेने के बाद जी हाँ, मैं उस डिसीजन पे कायम हूँ, जो मैंने किया वो सही किया। तो इसका एक उत्तम उदाहरण आपने हम सब के सामने रखा। सर, बातों बातों में जैसे आपने टूरिस्ट की बात कही या फिर आपने ये भी बात का जिक्र किया कि चाइना जैसे देशों में लेबरर्स जिसको हम कहते हैं कि वो कम मात्रा में आते हैं, लेकिन सऊदी हो या फिर मिडिल ईस्ट हो, एमिरेट्स जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे श्रमिक, मैं मजदूर इस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, श्रमिक जो हमारे होते हैं, जो लोग वहां पे अक्सर जाते रहते हैं और किसी कारणवश, जैसे कि हमने इसके पहले, इस इंटरव्यू के पहले जब हमने बातचीत की थी, उस वक्त हमने वीजा के बारे में हमने कुछ बातों का जिक्र किया था, कुछ बातें हमने मतलब हमारे डिस्कशंस में आई थी। जब ये अनऑथोराइज लोगों को भेजा जाता है या फिर इन चीजों से बचने के लिए कुछ अगर आप हमें अगर कुछ सुना दे और अगर हमसे कुछ आप अगर शेयर करें कि इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है, वी कैन मेक पीपल अवेयर। करेक्ट। देखिए, दो सही प्रसाद आपने सही कहा या सही सवाल पूछा है। मैं आपको थाईलैंड का एक उदाहरण दे सकता हूँ कि थाईलैंड में भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मुझे आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि थाईलैंड में सबसे बड़ी इंडस्ट्री और वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज टूरिज्म, राइट। और उस टूरिज्म से जो लिंक एक ये है, वो है होटल इंडस्ट्री और भारतीय रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा संख्या में जो हॉट टूरिस्ट स्पॉट्स है थाईलैंड के, वहां पे है। किसी शहरों में तो इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। तो इसमें काम करने वाले जो लोग हैं, वो लोग अधिकतर, मुझे बड़ा अचरज हुआ है ये जान के कि वो बहुत से लोग उत्तर प्रदेश से है और नॉर्थर्न उत्तर प्रदेश से ये लोग आते हैं। अब हर एक व्यक्ति अपना वीजा लेके और अपना ये प्रॉपर पेपर वर्क करके आता है, ऐसा संभव नहीं है। वो एक चैनल है जो इस्तेमाल किया जाता है जी। और ये सरकार की भी, भारत सरकार की एक उपलब्धि है कि ओवर दीज इयर्स there have been some concrete steps taken to reduce this number of people who are coming in illegally. या तो उन्हें लाया जाता है या वो एक नेटवर्क के थ्रू आते हैं। और क्या होता है, दो चीजें कि जब आप ऐसे इस प्रकार से किसी भी मुल्क में आप जाते हैं तो आपके पास कुछ नहीं रहता है, ना आपके पास पासपोर्ट है, ना आपके पास वर्क परमिट है, ना आपके पास वीजा है। आप अपने आप को एक बंदी बना देते हैं। यू आर वर्चुअली लाइक अ प्रिजनर। दो चीजों में, एक तो आप किसी व्यक्ति जिसने आपका पासपोर्ट रखा है या किसी जिसने आपका वो रखा है, आप उसके बंदी बन जाते हैं।
जी, या आप सर्कमस्टेंसेस के बंदी बन जाते हैं। कहीं आपको अगर किसी मेडिकल फैसिलिटी किसी हॉस्पिटल जाना पड़े, कहीं आपको चेकिंग हो जाए, तो ये डर, ये खौफ आपके आपके ज़हन में हर वक़्त रहता है। जी, और अब क्या हुआ है प्रसाद जी कि अब ये सिचुएशन और भी खराब हो गई है, बिकॉज़ 2 साल से आप जानते हैं कोविड से ये सारी की सारी इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो गई है जी, थाईलैंड। जी, बहुत से लोगों की नौकरियाँ इसलिए खत्म हो गई है। और अब वो ऐसे सिचुएशन में है, कैच 22 सिचुएशन जिसे कहते हैं, कि ना वो वहाँ रह सकते हैं, ना ही वो वापस आ सकते हैं। ओह! ओके, कई ऐसी भारतीय संस्थाएँ हैं जिनका उल्लेख करना बहुत लाज़िम है, जो इन लोगों के लिए उनके 2 वक़्त खाना खिला रही है थाईलैंड में, और उनको जहाँ तक हो सके प्रयास कर रही है कि उन्हें लीगली अगर वापस भेजा जा सके भारत, अगर वो जाना चाहे, तो उनके लिए प्रबंध किया जाए। तो ऐसी कुछ समस्याएँ प्रसाद होती है, तो क्लियर है कि ये इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जहाँ तक हो सके लीगल रूट से आना, ये सबके लिए, और अपने आप को इस सिचुएशन में कभी ना डालें कि आपका पासपोर्ट किसी और के पास है जी, या आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको पता नहीं है कि क्या हुआ है। अब ये कहना मेरे लिए बहुत आसान है, जी। वस्तुस्थिति मुश्किल है, पर इस पे भी रेडियो की टीम कुछ मूलभूत काम कर रही है, जिसमें हम सुधार लाने के प्रयत्न ज़रूर करेंगे। सर, जिस प्रकार से आपने ज़िक्र किया कि जो श्रमिक जो हमारे जाते हैं, education wise, I mean, they are not well versed with हुँ, हुँ। this rules and guidelines and regulations. तो अगर कोई अनऑथोराइज्ड उस देश में अगर प्रवेश करता है, वहां पे प्रवेश करने के बाद अगर ऐसा कोई फंस गया, तो वो पहले किससे संपर्क करे कि and when he or she realize, हाँ, मेरे साथ जो व्यवहार होना चाहिए था, जैसा कि मैं अगर मान लीजिए कि मेरा खुद का ही अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि मैंने अवैध प्रकार से अगर प्रवेश किया थाईलैंड में, तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि शायद मैं गलत जगह पे आ गया हूं या गलत मार्ग पे आ गया हूं। पहले वो किसे संपर्क करे? वहाँ पे कुछ हमारी ऐसी कोई प्रणाली अगर हमने विकसित करके रखी हुई है या फिर कुछ के पुख्ता इंतजाम अगर हम आगे फ्यूचर में करने वाले, तो उसके बारे में अगर जानकारी दे तो बहुत करेक्ट। प्रसाद, इसका उत्तर काफ़ी सरल है। उत्तर बिल्कुल ये है, स्पष्ट उत्तर दूँगा मैं कि ऐसे सिचुएशन में प्रसाद, उस व्यक्ति ने पहला कॉन्टैक्ट इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट से ही करना चाहिए, ठीक। क्योंकि भारतीयों का ऑफिशियल प्रतिनिधित्व भारत की इंडियन कॉन्सुलेट यानी भारत की सरजमी है, जो उस देश में है, और इंडियन कॉन्सुलेट और इंडियन एम्बेसी इज कमिटेड जी, टू प्रोटेक्ट एवरी सिंगल इंडियन ओवरसीज। और हम जैसे लोग, रेडियो जैसे लोग, हमारा काम यह है कि हम बहुत क्लोजली इन कॉन्सुलेट से, इन एम्बेसी से कनेक्टेड है। तो ऐसा कोई केस अगर आता है जिसमें किसी तरह की सिविलियन हेल्प प्रोवाइड करने की जरूरत हो, तो हम उसके लिए सक्षम हैं अच्छा, और हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। जी, पर कॉन्सुलेट के थ्रू आपको सारी लीगल सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी कि जिससे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। जी, और अगर उसके बाद जो भी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो रेडियो के टीम और रेडियो अपना नेटवर्क ऑलरेडी बना चुकी है। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एसोसिएशंस है, अलग अलग क्षेत्रीय एसोसिएशंस रहती है इन इन सारे इसमें। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है इन देशों में ऐसे लोगों को मदद करने के लिए। जी। अ, तो वो नेटवर्क ऑलरेडी रेडी है, पर बेखौफ होके इंडियन एम्बेसी और इंडियन कॉन्सुलेट से कांटेक्ट करना। अच्छा, सर, जब जिस प्रकार ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि समस्या कब आएगी, कैसे आएगी, इसका अंदाजा हम किसी को नहीं रहता है। पर ये समस्या आने के बाद आपने जैसे बोला कि पहले कॉन्सुलेट को आप इंडियन कॉन्सुलेट को पहले संपर्क कीजिए। तो हम लोग कुछ ऐसे प्रबंध आगे भविष्य में करने जा रहे हैं कि क्रिएट एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस अमंग्स्ट दोज पीपल हु आर एक्चुअली जिनको बोलते हैं ना कि जो कानून की
जो भाषा रहती है वो समझ में अगर नहीं आती है तो उनके लिए कुछ जैसे हम कहते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे कि कलोक्वियल लैंग्वेज से अगर हम जी कहें कि जो समझने में आसान हो, जैसे अगर कुछ हम लोग प्रबंध करने जा रहे थे उसके बारे में अगर आप बता रहे तो बहुत अच्छा होगा। जी, बिल्कुल। सही सही कहा आपने। और आपने मुझे एक सरल स्पष्ट सवाल पूछा था, इसलिए स्पष्ट उत्तर मैंने दिया कॉन्सेप्ट के बारे में। पर वस्तुस्थिति ऐसी होती है कि ये लोग जब किसी दुविधा में आते हैं, जी, तो ये लोग अलग-अलग चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल लाज़िम है और जो बिल्कुल सही है, उन्होंने करना चाहिए। वो जी, अपने मित्रों के पास, उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके पास। पर अब मैं कहूँगा कि ये सब ना करते हुए, जी, रेडियो जो अलग-अलग माध्यमों से आपके पास 24/7 अवेलेबल है। राइट, हमारी रेडियो के की कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके ईमेल एड्रेस, हमारा हेल्प डेस्क, ये सारी की जानकारी अब अलग-अलग चैनल्स पे है। फ़ेसबुक से लेके मैंने जैसे आपको कहा। तो रेडियो टीम के साथ संपर्क करना बिल्कुल मुश्किल नहीं जाएगा। उससे आपको 2-3 फ़ायदे हो सकते हैं। आपने जैसे कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रांत से हो भारत के, तो जी, हमारे पास वो टीम है जो एट लीस्ट वी विल बी एबल टू फाइंड अ फ्यू पीपल उस प्रांत से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं से भी हो भारत, किसी भी जगह से हो, तो उसे उस भाषा में हम बात कर सकें उसके साथ। उसको अलग-अलग ऑप्शन सब बता सकें। और बहुत बार क्या होता है प्रसाद कि ये सिचुएशन हम तक तभी पहुँचती है, जब ये बिल्कुल पानी सर से ऊपर जस्ट जाने वाला होता है या ऑलरेडी जा चुका होता है। या तो व्यक्ति इतनी बुरी तरह फँसा है कि या तो जेल में है या फिर वो ही इज़ अंडर लॉट ऑफ पर्सनल प्रेशर, कोई उसे डरा रहा है, धमका रहा है। इस सिचुएशन में और भी इम्पोर्टेंट है कि वो व्यक्ति जो ये कर रहा है, उसे ये ज्ञान हो या ये ज्ञात हो कि ये व्यक्ति जिसे वो छल कर रहा है या जिसे तकलीफ दे रहा है, वो अकेला नहीं है। उसके पीछे ये इतनी बड़ी ग्लोबल टीम खड़ी है। बहुत बार प्रसाद ये दिस सिंगल पॉइंट itself makes a big difference in the attitude ओके, of the oppressor. जो तकलीफ दे रहा है, उसे भी ये समझ में आता है कि भई ये अकेला नहीं है। ये व्यक्ति अकेला नहीं है, मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। और ये उपलब्धि भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। सर ऐसा कुछ अगर हमने इन भविष्य में हमने कुछ उसके प्रावधान अगर रखे हैं कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स या फिर कुछ फ्लायर्स और ऐसा अगर कुछ है तो अगर हम उसके बारे में भी अगर हम जी, जी। इसीलिए प्रसाद क्या होता है कि जब ये सिचुएशन आपने कही, आप भी ये सोच सकते हैं और आपको भी ये बिल्कुल ज्ञात होगा कि जी, देयर इज़ नॉट वन साइज़ फिट्स ऑल सॉल्यूशन। राइट, क्योंकि इस सारे विश्व में अलग-अलग प्रांतों के बहुत अलग-अलग और बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं। राइट, मिडल ईस्ट, दुबई, सऊदी, रियाद इसके प्रॉब्लम्स बहुत स्पेसिफिक है। और कितनी अच्छी बात है कि रेडियो की एक लोकल टीम ऑलरेडी यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, जिन्होंने अपने एसओपीज वहां बना के रखे हैं, क्योंकि उनको 5, 10, 15, 20, 25 साल का अनुभव है कि राइट, यहाँ पे किस तरह के मुसीबतें, किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। नॉर्थ अमेरिका के प्रॉब्लम्स अलग है। चाइना का प्रॉब्लम एकदम अलग है। चाइना का सबसे, अगर आप मुझे आज पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते हैं बिल्कुल जिसे कहते हैं दिल के पास वाला प्रॉब्लम है। 2 साल पे, अब नियरली 2 साल होने को आ गए। चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने ये अनाउंस किया कि भाई कोविड हमारे यहाँ हुआ है और हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं। स्वाभाविक था कि जो भारतीय वहां पे है, उन्हें डर का माहौल हो, और उन्होंने प्रयत्न किया कि जो कोई फ्लाइट मिले वो भारत आ गए। जी, आप उन्हें गलत नहीं कह सकते, बिकॉज उस वक्त काफी खौफजदा था। चाइना बहुत खौफजदा था और सारा बाकी विश्व इस कोविड महामारी से जूझ ही नहीं रहा था। वो तब तक राइट, वहां हमारे यहाँ तक आई नहीं थी। राइट, मुझ जैसे बहुत कम लोग थे जो चाइना में रहे, पर एक बहुत बड़ा नंबर भारत में आ गए और कुछ ही महीनों में पूरी सिचुएशन बदल गई। 6 महीने में चाइना ने अपने जो क्राइसिस था उस पर काबू कर लिया और उन्होंने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। प्रसाद आज 2 साल होने को आ गए हैं और ऐसे कई परिवार है, और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स प्रसाद, वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज हु हैव बीन फिजिकली सेपरेटेड। पति चाइना में है, पत्नी और छोटी बच्ची भारत में है। किसी के माँ बाप यहाँ पे है,
जो उनके साथ वहां रहते थे, बेटा वहां पे है, माँ बाप की तबीयत अब खराब हो रही है, बेटा या बेटी चाहते हुए भी यहाँ उन्हें मिलने आ नहीं सकते। कहीं कहीं तो इतनी कुछ दुर्घटनाएं हुई है परिवार में, पर फिर जी। भी लोग आ नहीं सकते। तो साथ सबसे सबसे प्यारा प्रॉब्लम ये है कि कुछ कुछ लोगों की शादियां तय हुई थी ओ, 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 और वो अपनी यहाँ पे शादी करने नहीं आ सके, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर चाइना से कोई भी व्यक्ति आज भारत आता है तो उसे वापस जाने का कोई मार्ग नहीं। राइट। आज रेडियो के माध्यम से हम दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्ट्री से लगातार अपील कर रहे हैं कि ये सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए, कि भाई ऑन ऑन सम काइंड ऑफ एन इमरजेंसी बेसिस या क्रिटिकल बेसिस कुछ वीजास लोगों को दिए जाए ताकि वो आ सके, और प्रॉपर केयर के बाद आपको जिस तरह का कोविड टेस्टिंग चाहिए वो करने के बाद लोगों को वापस चाइना में आने का ये इसका परमिशन मिल सके। अब देखिए प्रसाद, ये प्रॉब्लम बहुत अलग है, ये मुख्तलिफ है। ऐसा प्रॉब्लम शायद किसी और देश के साथ भारत में नहीं है। राइट। So there are these SOPs that are being made, or there are some critical points on every country, almost all the countries, Right. where हम एक local issue को tackle कर रहे हैं और उसका local solution ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट सर। हम जब बातें करें, आप जिस प्रकार से आपने स्पेशली चाइना की और थाईलैंड की बात कही, you know, there's a famous quote, if you can't handle stress, you can't manage success, right? तो अगर लाइफ में आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो यू कैनॉट इवन हैंडल, यू कांट मैनेज सक्सेस। तो अब तक तो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी, कुछ ऐसे भी अनगिनत किस्से, अनगिनत एग्जाम्पल्स आपके पास रहेंगे जिसमें कि जब आदमी मुश्किल के साथ आता है तो वो रोता हुआ आता है, जब उसका हल निकलता है तो वो मुस्कुराते हुए जाता है। आप कुछ ऐसे अगर उदाहरण हमारे सामने अगर और हमारे साथ अगर शेयर करें तो बहुत बेहतर होगा। ऐसा कोई उदाहरण, सॉरी टू कट, बट ऐसा कोई उदाहरण जिसमें इट द केस वाज वेरी क्रिटिकल एंड there were few complications, but I mean, you did it, and you know, it turned to be a success. प्रसाद, आपने सही कहा। एक तो यह है कि एक मुस्कुराने की एक अच्छी आदत जो यहाँ से नागपुर से मिली है, वो मैंने आज तक रखी है। और वो मुस्कुराहट इसलिए भी आती है क्योंकि इतने लोगों से संपर्क हुआ, इतनी दुआएं मिली है यहाँ तक। कुछ हंसी मजाक की आपको बातें बताता हूँ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बंबई से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ही इज वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन, वो चाइना आए थे और इसका मुझे ज्ञात भी नहीं था। वो चाइना की टॉप कंपनी जो हांगजो में है, और हम सब उस कंपनी के बारे में जानते हैं, उसका भी नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, जो काफी अभी चर्चा में थी, उसके ओनर काफी चर्चा में थे अभी। उनसे कुछ वार्तालाप करने, उनसे कुछ मीटिंग्स करने के लिए वो आए थे। अब लाजिम है प्रसाद कि ऐसा जब होता है तो मुझे इसका कोई इल्म या इसका कोई नॉलेज होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। नागपुर से एक व्यक्ति का मुझे फोन आया। अब देखिए ऐसे ही होता है, उसे एक समस्या थी और उसने पूछा अपने दोस्तों से कि भाई चाइना में कौन है। तो मेरा नंबर दिया गया, उन्होंने मुझे फोन किया। ये शाम का वक्त था और उन्होंने कहा कि अमित जी, मैं ऐसा ऐसा व्यक्ति हूँ और मैं भारत से हूँ। ये कह देना ही मेरे लिए बहुत हो जाता है। मैं उसके बाद दादा उस व्यक्ति को पूछा ना, मैंने बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा सर, एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी उलझन है। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम बताया, उस बड़े बिजनेसमैन का नाम बताया। मैंने कहा तो वो अगर इतनी बड़ी कंपनी के साथ डेट करने आए हैं, मुलाकात करने आए, तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगा कि कोई उनके साथ कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट तो नहीं हो गया है। सर नहीं सर, वो जैन है और वो 2 दिनों से भूखे हैं क्योंकि उनको एक डर लग रहा है कि उनके खाने में कहीं ना कुछ नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, नॉन वेज फूड हो सकता है। तो ब्रेकफास्ट से लेके कुछ नहीं खा रहे और अब वो बहुत वीक हो गए हैं और वो इज ऑल्सो डायबिटिक। तो हमें बहुत डर लग रहा है सर। हम तो सोच रहे हैं कि उनको बिल्कुल वापस ले आए। वो अपने प्राइवेट प्लेन से आए थे। तो मैंने कहा अच्छा ये समस्या है। मैं जोर से हंस दिया। मैंने कहा उनका नंबर मुझे दीजिए, बस मैं इस समस्या का 1 घंटे में हल करता हूँ। मैंने उनका फोन किया, उनके सेक्रेटरी जो उनके साथ थे, उन्होंने फोन उठाया। मैंने कहा देखिए
हांगजो से मेरा घर 1 घंटे की दूरी पे है। अभी आपको मैं आधा घंटा और दे देता हूँ और ये समझ लीजिए कि मैंने अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया है आप सब लोगों के नाम का। आप 1.5 घंटे में मेरे घर पहुंचिए और आपको प्योर वेजिटेरियन खाना और भाई होममेड। सीधा साधा आदमी हूँ, आपको बहुत 5 स्टार वाला खाना तो नहीं खिला पाऊंगा, पर घर पे तो दाल रोटी खाते हैं, वो आप खाने हमारे यहाँ आ जाइए। प्रसाद, औपचारिक भेंट ऐसा तय हुआ कि वो 1 घंटे ही रुकेंगे हमारे यहाँ और खाना खाएंगे और निकल जाएंगे। ये 9 बजे वो आए रात के, और प्रसाद 2 बजे तक हम गपशप लड़ाते रहे। उनकी हंसी वापस आ गई। वो बहुत प्रसन्नचित्त हुए। सबको भारत में फोन करके उन्होंने बताया कि ऐसा 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 लजीज घर का खाना हमने खाया नहीं है। और आज भी वो मुझे एक छोटे भाई का स्थान देते हैं। मेरी पत्नी को वो अपनी बहन मानते हैं। प्रसाद, ये हम जैसे जब छोटे थे तो हमको बताया जाता था ना कि अन्न से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। आप किसी को भी, और फिर वो चाहे वो गरीब हो या अब्जोपति हो, ऐसे प्यारे से जब अनुभव आते हैं प्रसाद, तब बहुत एक सुकून मिलता है दिल को। हम लोग मतलब जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो डिस्ट्रेस किसी भी वजह से, आई थिंक वी जस्ट हैव टू ओपन आवर horizon in terms of डिस्ट्रेस। आप किसी भी वजह से हो, यू नीड टू कनेक्ट विद रेडियो। इफ यू सेटल डाउन इन, या अगर आप देश के बाहर हो और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो रेडियो से बिल्कुल संपर्क कीजिए। बिल्कुल करना चाहिए। राइट। और सर, राइटली यू सेड दैट एंड आई मीन जब आपसे बात करना शुरू कर, आई मीन जितने भी कोट्स मैंने पढ़े हैं अब तक, वो एक एक मेरे जबान पर अपने आप आ रहे कि देयर इज अनदर फेमस कोट दैट आई विल सक्सेस इन लाइफ, मे बी नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। एंड जो रेडियो के माध्यम से हमने ये कार्य शुरू किया है, उसका बहुत प्रचार प्रसार तो हम वैसे भी करने वाले। पर सर, ऐसा कोई अगर वाकया या फिर ऐसी कोई घटना जिसे हम बोलते हैं ना कि लाइफ में एक इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्नॉक्शियस टर्न इन आवर लाइफ, जैसे कहती कि हाँ, मुझे ये जो घटना हुई और इसको मैंने सुलझाया, उस वक्त जो दिल में एक खुशी की लहर दौड़ती है, वैसा अगर कुछ। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने प्रसाद। आपको याद होगा क्योंकि ये काफी बहुचर्चित विजिट थी 2015 में। हम सबके चहीते हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाइना के ऑफिशियल दौरे पे चाइना के इनविटेशन को स्वीकार करके वहां आए थे एज अ स्टेट गेस्ट। हमें इंडियन एसोसिएशन को एक बहुत अभूतपूर्व मौका दिया गया उनके लिए एक कम्युनिटी इवेंट शंघाई में अरेंज करने का। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और हमारे पूरी टीम के लिए नहीं थी। और हम जुट गए इस काम में। पर हमें प्रसाद सोचिए, हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि भाई ये चाइना है। चाइना में तो उनके भी राजनीतिक नेताओं के लिए कोई ऐसा सम्मान, कोई ऐसा पब्लिक गैदरिंग कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है। किसी भी वर्ल्ड लीडर के लिए ऐसा इवेंट, कम्युनिटी इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था चाइना में। तो लाजिम था कि जब हमने ये काम शुरू किया, तब जो शंघाई के डिप्टी मेयर थे, उनसे बुलावा आया मुझे, अरे आप ही है वो ऑर्गेनाइजर, आइए जरा बात करनी है। और उन्होंने कहा कि मिस्टर वाइकर, यू रियलाइज दैट यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली इलीगल टू डू, एंड फॉर दैट यू कैन बी अरेस्टेड। अब सही था उनका। मैंने कहा पहले जब आप इसका लेसन क्या है, इसकी सीख क्या मिलती है कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप घबरा जाए या आपका जो मन है वो अगर चंचल हो जाए तो आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। Right. पहले तो the first thing I did was I accepted his point. I said, sir, when I put myself in your shoes, you're absolutely right. आपकी बात गलत नहीं है, सही कह रहे हैं आप जी। मेरा सिर्फ एक ही सर एक छोटा सा आपको एक पॉइंट है कि ये जो व्यक्ति है जो आ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे सबके चहीते प्रधानमंत्री तो है ही, भारत की शान है, ये सब लाजिम है। पर सर ये आपके स्टेट गेस्ट है, ये आपके बुलावे पे यहाँ आए हैं।
अगर आप स्टेट गेस्ट के ऑनर में मैं अगर एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं तो आपके देश की शान ऊपर कर रहा हूँ, उसे बढ़ा रहा हूँ। आप अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं ये अनाउंस कर दूँगा और ये प्रोग्राम हम नहीं करेंगे। You are very smart and very cute, Mr. Vaikar, and that is the only reason that you are still not in prison. All the best for your event. ओके ओके, वाह। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आप कह रहे हैं, ये राइट। उसको काम में आता है और इसकी सबसे बड़ी आप कहते हैं कि ट्रॉफी, मेडल आप जो भी कहना चाहे, वो ये हुआ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने स्वागत करके वो उन्हें रिसीव करने के लिए मैं वो खड़ा था और वो आए, उन्होंने मेरा नाम पूछा और बातचीत की और कहा कि कितने लोग हैं अंदर? तो मैंने कहा सर 7,000 भारतीय आपके लिए जी जान से और पूरी जोश से आपको सुनने के लिए बेताब है, आइए। तो उन्होंने पीठ पे हाथ रखा और कहा आपने मेरे लिए लघु भारत का निर्माण यहाँ चाइना में किया है। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है ना प्रसाद, आप इसको किस तराजू में मोलेंगे? आपको आप इस वैल्यू इसकी क्या वैल्यू लगाएँगे? तो ऐसी भी चीज़ें जब होती है, मैं नागपुर जैसे छोटे शहर से निकला हुआ एक बहुत ही सर्वसामान्य इंसान हूँ। कोई कोई ऐसी ख़ासियत मुझ में नहीं है, पर जब ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाता है, तो आपको लगता है कि ये जो सारे वर्ष की जो आपकी थोड़ी बहुत जो काम आपने किया है, इसको इससे बड़ा उपलब्धि या इससे बड़ा टाइटल या इससे बड़ा एप्रिसिएशन नहीं हो सकता। वाह सर, आपने मतलब जब हम इस चर्चा के अंत पर्व तक अगर हम पहुंच जाए और यहाँ पे जो आपने बात कही, जो आई रियली वांट टू एंड इट ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। और जिस विचार से मतलब अगर जीत की अगर व्याख्या की जाए तो जीत की व्याख्या वही होती है कि जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते। जैसे कि आपने कहा कि जब when that delegates, that officer told you that that this is something what you're doing that is illegal, you could have definitely make out some reasons to tell your participants that because of so and so reason we are unable to do so. But you put it in this way कि you are right and you completely change that game. और जो बात का जिक्र आपने किया कि लघु भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री ने वहां पे रखी, जो एक चेयरफुल मूवमेंट रहता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। और जब कभी भी कोई भी मुश्किल आन पड़ती है तो कोई आपका साथ नहीं देता जनरली, और यहाँ उस वक्त उस व्यक्ति को खुद को लड़ना और खुद को संभलना हो, ये बात भी उतनी ही सही है। लेकिन आज के इस दौर में जैसे कि हम सोचते हैं कि सोशली कनेक्टेड बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द है, हमारे आजू बाजू में है, और मैं इस माध्यम से जो भी लोग, जो भी श्रोता है इस प्रोग्राम को सुनने वाले हैं या फिर जिन लोगों ने सुना है, उन लोगों को बस जाते जाते बस यही कहूंगा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। वाह! तो आज के इस पहले इस एपिसोड में और आज की इस चर्चा में हम सब ने अमित जी की बातें सुनी, अमित जी की बातें सुनी। जी हाँ, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि अमित जी की बातें सुनी, क्योंकि वो बोल रहे थे वो सच में एक प्रभावशाली, और जिसे हम कहते हैं ना कि जब तक आप when you will realize it, that point in time you will understand the intensity of that problem. हमने बहुत सारी कोशिश की कि आज के इस चर्चा में जो भी अनऑथोराइज एक्सेसेस होते हैं या फिर जो लोग इनअप्रोप्रिएट वे से दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, अगर वो मुश्किल में फंस जाते हैं, देखिए मुश्किल कैसे आएगी, जिस प्रकार से हमने चर्चा की शुरुआत की थी कि 2020 में हमें ये पता नहीं था कि पैंडेमिक आने वाला, समस्या आ गई और समस्या का समाधान भी हमने ढूंढ लिया। इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हो और आप उस वक्त किसी समस्या में आपको जाने अनजाने में आप समस्या का सामना करते हो, उस वक्त आपको पहले करना क्या है?
इसका समाधान ढूंढने की कोशिश आज की चर्चा में की। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आपने हमारा मार्गदर्शन किया रेडियो की पूरी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत ही आभारी हूँ। बहुत ही पुख्ता जानकारी आपने हमारे साथ शेयर करी और बहुत बहुत धन्यवाद। और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद।